Okay, students, welcome to the next part of this chapter, the enemy. In the earlier part, you had seen that Dr. Sadav and his wife had seen a American soldier who was washed out from the sea, and this soldier was injured. Okay, and they were in a dilemma what to do with this person, whether to take him, because if they take him in their house and if they are caught, they will be prisoned and maybe treated as a traitor, because Japan and America were at war. Okay, now but at the same time they had decided if they will give it to the police or army, he will be certainly be killed. And the third option was to throw him back into the sea. These three options they had, okay, and the best option was to throw him into the sea so that nothing have happened ever. But they decided on the third option, that was to take him to the home. And in the last part of the first video you had seen that they had carried him. He was a very light, and they carried him to the room which belonged to Dr. Sadav's father, and that room was particularly furnished in a Japanese style, and it didn't have any foreign bed or chair, because Dr. Sadav's father never sat on a chair, foreign chair, or never slept on a foreign bed. Okay, now let us start. She hesitated to give the quilt also, but finally she gave. He is so dirty, she murmured in a distress. Yes, he had better be washed, Sadav agreed. If you will fetch hot water, I will wash him. तब finally they had decided that कि उसको clean भी करना है so that they can operate. I cannot bear you to touch him, she said. We shall have to tell the servants he is here. I will tell Yummy now. She can leave the children for a few minutes and she can wash him. Okay, अब वो ये भी कह रही है कि मैं यम्मी को कहती हूँ कि वो नहीं चाहती कि डॉक्टर सड़व वो उसको क्लीन करे. ओके, एंड she tells that I will tell Yummy. Yummy is another servant. So she tells Yummy. Yummy is as I told you, she is a servant who is looking after the children. She can leave the children for a few minutes and can wash him. Okay. अब वो ये कह रही है यम्मी को बुलाएंगी. अब देखते हैं आगे क्या होता है. सड़व कंसिडर्ड ए मोमेंट. सड़व थोड़ा हेजिटेट हो रहा था. लेट इट बी सो, और फाइनली एग्रीड विद द हैना कि ओके, यू टेल यम्मी, आई विल टेल द अदर सर्वेंट्स. Okay, but the utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. मगर जब चेहरा देखा उस अमेरिकन सोल्जर का who was unconscious, तो ये एकदम से रुक गया कि पहले उसकी पल्स फील कर लूँ कि कैसा है ये. एंड इट वॉज फेंट, बहुत ही फेंट थी, तक हो रही थी. एंड बट he put his hand against the man's cold breast and heart too was alive. और ऐसे देख के उसने फील किया. He will die unless he is operated on, Sadav said. Considering the question is whether he will not die. See, this is nice line कि anyhow this person is going to die. Dr. Sadav says that if he is not operated, he will die. But what about the future? When he is being handed over to the police, what happens? He will die. Okay, anyhow, the question is whether he will not die anyway. Hannah cried out in fear, don't try to save him, what if he should leave? तब हैना थोड़ी सी विचलित हुई एंड वो कहती है कि डोंट ट्राई टू सेव हिम, अगर ये जिंदा बच गया तो क्या होगा. व्हाट इफ ही शुड डाई. डॉक्टर सड़व को तो ये भी चिंता है कि अगर मर गया तो क्या करेंगे हम,
He stood gazing down on the motionless man. This man must have extraordinary vitality, or he would have been dead by now. And in fact, this wound, this sea, again reopening of the wound, everything have caused lot of blood have been lost. So now Dr. Sadao says that this man has extraordinary vitality, that is the willpower and the immunity. So but he was very young, और शायद बहुत ही यंग है इसीलिए ये इतना अभी तक सहन कर पाया. You mean die from the operation? Hannah asked. Yes. जब बोला कि अगर ऑपरेशन से मर गया, बोला बिकॉज हैना को विश्वास ही नहीं है. हैना कंसिडर दिस डाउटफुल, क्योंकि डॉक्टर सड़ाऊ इज सच अ पर्सन, सच ए सर्जन दैट एनीबडी whom he operates will never die. उसको इतना विश्वास है हैना को. Considering this doubtful, and when she did not answer, Sadao turned away. At any rate, something must be done of him, he said. First he must be washed. सबसे पहले इसको वॉश किया जाए. He kept quickly out of the room and he went quickly out of the room and Hannah came behind him. Hannah भी उसके पीछे पीछे भाग गई because she did not wish to be left alone with the white man. वो अकेले ही उस रूम में उस white person के साथ नहीं रहना चाहती थी. Okay, he was the first she had seen since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those who had known there. Here he was her enemy, a menace, living or dead. यहाँ पे ये पर्सन जो है ये ही इज ए मेनांस, सिरदर्द है, भले वो जिंदा है या मर गया है, बट ही इज ए मेनांस, लिविंग और डेड. इसका अलावा वो ये भी बताती कि अमेरिका से आने के बाद ये फर्स्ट पर्सन है जिसको वो मिली. She turned to the nursery and called Yummy. और नर्सरी यानी जहाँ पे वो अपने उसके दोनों बच्चे वहाँ पे उनका बच्चों का रूम है, और यमी को बुलाया. बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस. जैसा होता है माँ की आवाज़ सुनते ही बच्चे एकदम विचलित हो गए कि माँ से मिले. एंड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट एंड शी एट दैम and smile at them and play with the baby boy with nearly 3 months old. 3 महीने का बच्चा है, उसके साथ थोड़ी खेली और और ऐसे ऐसे उसके सर पे हाथ फेर के यमी को कहती, यमी कम विथ मी, आई विल पुट द बेबी इन बेड. यमी रिप्लाइड ही इज़ रेडी. वो कहते मैं बस बेबी को सुला के बस आ ही रही हूँ, वो रेडी एकदम. She went with Yummy into the bedroom next to the nursery, stood with the boy in her arms while Yummy spread the sleeping quilt on the floor and laid the baby between them. और फिर वो यमी के साथ गई बेडरूम में जहाँ पे बच्चों को सुलाना था, और बच्चों को वहीं पे जो नीचे मैट था, एक तो नीचे गद्दा वद्दा डाला, एंड देन उसको वहाँ पे बेबी को सुला दिया. Then Hannah led the way quickly and softly to the kitchen. और वो बहुत जल्दी से और चुपचाप to the and अब वो उसको वहाँ पे सुला के और किचन की तरफ बढ़ गई. The 2 servants were frightened. अब ये जो 2 सर्वेंट्स हैं उनको डॉक्टर सड़ाऊ ने बोल दिया था, and they were frightened at what their master had just told them. The old gardener, इनके यहाँ पे एक गार्डनर था, who was also a house servant, pulled the few hairs out of his upper lips. और गार्डनर क्या कहता है, the master out not to heal the wound of this white man. यानी ये white man का जो जख्म है उसको मास्टर को ठीक नहीं करना चाहिए. क्यों? Because the white man out to die. इसको मरना ही चाहिए. बिकॉज फर्स्ट ही वॉज शॉट,
सबसे पहले तो इसको गोली मारी गई. Then the sea caught him and wounded him with her rocks. उसके बाद उस समुंदर ने उसको पकड़ा और उसको जख्मी किया. If the master heals what the gun did and what the sea did, they will take revenge on us. और अगर मास्टर इनको बचाता है, गन उसको मारना चाहती थी, ओशन इसको मारना चाहता था, अगर मास्टर इसको बचाता है तो ये दोनों ही हमसे बदला लेंगे. दिस वॉज ए थोड़ा सा दैट इज डिसबिलीफ इज देयर एंड आई विल टेल हिम व्हाट यू से, है ना. क्या कहते उनको कि ठीक है आप जो कह रहे हो वो. बट शी हरसेल्फ वाज आल्सो फ्राइटन ऑल्दो शी वाज नॉट सुपरस्टिशियस. ये सुपरस्टिशियस नहीं थी जैसे कि वो गार्डनर है, बट वो डरी हुई थी. शी वॉज अफ्रेड एज द ओल्ड मैन वॉज. कुड इट एवर बी ए वेल टू हेल्प एन एनिमी. क्या ये सही होगा एक एनिमी को हेल्प किया जाए. Nevertheless, she told Yummy to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. फिर भी उसने यमी को कहा कि तुम गर्म पानी लेके बाल्टी लेके उस रूम में आ जाओ जहाँ पे वो फॉरेनर है. She went ahead and slid back the partition. Sadao was not yet there. वो वहाँ पहुँची और उसने दरवाज़ा खोल के अंदर गई. तब तक सड़ाव नहीं आया था. अब वो वापस उस फॉरेनर दैट इज़ द अमेरिकन प्रिजनर के साथ अकेली है. Yummy following put down her wooden bucket. She went over the white man when she saw him her thick lips. और जब वो white man को देख रही थी उसने अपने जो होठ होते हैं एकदम से भींच लिए यानी दबा लिए. And white man when she saw him her white lips folded themselves stubborn. जिद की वजह से ऐसे करके उसने जिद हो रही उसकी. आई विल नेवर वॉश द वाइट मैन. आई हैव नेवर वॉश. मैंने कभी वाइट मैन को वॉश नहीं किया. एंड आई विल नॉट वॉश. इसके अलावा शी वॉज द स्टबर्न. जिद कि नहीं मैंने कभी किया नहीं और आज भी मैं इसको नहीं करूँगी. दैट वॉज द सेड बाई यमी. हैना क्राइड एट हर सीवियरली. और हैना जो है एकदम से चिल्लाई उस पर. You will do what your master. तब हैना को भी थोड़ा गुस्सा आया एंड वो कहती है you will do what your master commands. बोला जो तुम्हारे मालिक कहते हैं वो तुम्हें करना है. There was so furious a look of resistance upon Yummy's round dull face that Hannah felt unreasonably afraid. और जैसे ही उसने ये कहा और एकदम से हैना तो को डांटा उसने और वो खुद घबरा भी रही है. Hannah felt unreasonably afraid. अगर by chance if this servant goes out and tell somebody or inform the police that a white man is being harbored in this house, तो क्या होगा? What will happen? They will come and arrest something that was not as it happened. If the servant should report something that was not as it happened. Very well, she said with dignity. फिर भी उसने बड़े कूल रखा हैना ने अपना दिमाग. एंड यू अंडरस्टैंड वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर. वो बस यही कह रही है हमारा व्हाट इज आवर इंटेंशन दैट वी विल जस्ट क्योर हिम द वूंड, make him okay and then we will hand it over to the authorities. वो ये कह रही है. But I will have nothing to do. यमी कहते मेरे को इससे कुछ लेना देना नहीं है. I will have nothing to do with it. I am a poor person and it is only my business. It is not my business. बोला मेरा काम नहीं है ये. क्या आप क्या कर रहे हैं क्या सोच रहे हैं जो करना है वो आप करो. मैं तो एक गरीब हूँ. Then please return to your work. तब हैना उसको कहते ठीक है तो अपने काम पे चली जाओ. एट वंस यमी लेफ्ट. और जैसे उसने ये कहा यमी वहाँ से चली गई. एट वंस यमी लेफ्ट द रूम बट दिस लेफ्ट हैना विद द वाइट मैन अलोन. और फिर वापस हुआ कि उस रूम में वो वाइट मैन है और वो है और
सब चले गए हैं, सड़ाऊ आया नहीं अभी तक एंड यम्मी अभी चली गई है। शी माइट हैव बीन सो अफ्रेड टू स्टे had not her anger, but in present situation she is angry, and because of this angriness she is little bit have forgotten her that she is alone with that person. She is not feeling afraid. Okay, her now sustained her stupid yummy, and now she is telling stupid yummy. She muttered fiercely, "It is this anything but a man." बोला क्या है ये, एक आदमी तो है, wounded person है, ये क्या हो जाएगा, इसको धो लेगी तो। In the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs that kept the white man covered. और फिर वो खुद नीचे झुकी एंड उसने जो रग्स थे, जो कपड़े थे, उनके नोट्स खोले एंड देन When she had his breast bare, she dipped. फिर टॉवल से लेके उसको साफ किया। Small towel that Yummy had brought into the steaming hot water washed his face carefully. The man's skin, though rough, was with exposure, was the fine texture. और जब उसको धोया तो he was जो टेक्सचर था स्किन का, it is very white and very blonde when he was a child. और शायद जब ये बच्चा होगा तब तो वो बहुत ही गोरा होगा। While she was thinking these thoughts, जब वो ये सोच ही रही थी, while she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now, वो सोच रही है but still she is not liking that person. Okay, he was no longer a child. She kept on washing him until the upper body. फिर पूरा उसका चेहरा वगैरह सब ये सब धोया and but she dared, मगर फिर भी उसको हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसको टर्न करे because यहाँ पे उसके वुंड है and but she dared not turn him over. Where was सड़ाऊ? फिर अब वो सोच रही है कि उसका जो हस्बैंड है वो कहाँ है, इतनी देर हो गई, why he is not coming. Now her anger was ebbing and she was anxious again and she rose, wiping her hand and the wrong towel. She lest the man be chilled, she put the quilt. और फिर वो उठी, हाथ धोए और उस आदमी के ऊपर वापस से रजाई डाल दे क्योंकि वो ठंडा हो जाएगा, मतलब चिल्लिंग है सड़ाऊ। और फिर धीरे से बोलती सड़ाऊ। और at that very moment the door opened. He had been about to come in when she called. His hand had been on the door and now he opened it. She saw he had brought his surgeon's emergency bag and that he wore surgeon's coat. उसने सर्जन का कोट पहन लिया था, अपना जो बैग होता वो लेके आ गया था। You have decided to operate and she cried. बोला तुम ऑपरेट करोगे इसको? Yes, he said shortly. He turned his back to her and unfolded a sterilized towel upon the floor of the Tacoma alcove and put his instruments out upon it. फिर उसने एक टॉवल, स्टरलाइज टॉवल लिया और उस पर जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो उस पर रख दिए, फैच टॉवल। और फिर वो कहता है कि कुछ टॉवल लेके आओ। She went obediently, put how anxious now to the linen shelves and took out the towel. There ought also to be an old piece of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering. अब वो एंशियस थी मगर फिर भी कि टॉवल देना है इसको गंदे से। फिर उसको लगा कि बाहर या अंदर कहीं ना कहीं ओल्ड पीस ऑफ मैटिंग यानी पुराने फटे हुए कपड़े होंगे ताकि जो ब्लड निकलेगा उससे फ्लोर गंदा नहीं हो जाए। ओके, बिकॉज इट इज कारपेटेड, ruin the fine floor covering. She went out to the back of the veranda where the gardener kept stripes of matting. और वो बाहर गई एंड आउटसाइड वहाँ पे गार्डनर कुछ कपड़े रखता था बिकॉज गार्डनिंग में बिकॉज ऑफ द चिली सीजन वो कुछ छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उन पे वो कपड़े रख देते ताकि वो कपड़े मरे नहीं। कोल्ड मैटिंग
with which to protect delicate shrubs in the cold night, took a armful. फिर थोड़े से लेके वो अंदर आई. But when she went back, जब वो वहाँ पहुँची कि ये मैट दे दूँ ताकि वो ब्लड निकलेगा, तो ये she saw this was useless. Because क्यों useless था? The blood had already soaked through the packing of the man's wound and had ruined the mat. और वो जो मैट थी वो वैसे ही ख़राब हो गई थी, because blood had oozed out of the packing. Now अब क्या होगा? Oh, the mat, she cried. Yes, it is ruined, सड़ाव replied. As though, सड़ाव को कोई मतलब नहीं था. As though he didn't care. Let me, help me to turn him. और वो सिर्फ ये कह रहा है उसको कि थोड़ा इसको टर्न करने में मेरी मदद करो. She obeyed him without a word and he began to wash the man's back carefully. Yummy would not wash him. यमी ने उसको साफ नहीं किया. अब क्या होगा? Did you wash him? बोला फिर तुमने वॉश किया? बोला हाँ. Yes, he said. He did not seem to hear. मगर डॉक्टर, हाँ ठीक है तुमने वॉश किया. उसका कोई रिप्लाई नहीं किया, बिकॉज डॉक्टर सड़ाव की हैबिट ही यही थी. बट शी वॉज यूज टू दिस अब्जॉर्प्शन. क्योंकि जब भी वो डॉक्टर सड़ाव काम करते थे, ही यूज टू गेट सो मच ऑब्जर्व्ड इन द हिज वर्क कि उसको आसपास का कुछ पता नहीं रहता था. व्हेन ही वॉज एट वर्क, शी वंडर्ड फॉर, जस्ट होल्ड ऑन, कहाँ गया? शी वंडर्ड, she wondered if it mattered to him. वो सोच रही है कि क्या उसको कभी फ़र्क पड़ता है कि ये जो नीचे है पर्सन जिसका वो ऑपरेशन कर रहे हैं, ये कौन है. एंड सी what the body upon which he worked so long did he so excellently. बहुत ही प्यारा काम करते हैं, मगर उनको कोई मतलब नहीं है कि नीचे कौन है. एंड देन ही टोल्ड, यस we'll have to go give the anesthetic if he needs. वो हैना को कहते हैं कि तुम्हें इसको एनेस्थीसिया देना होगा अगर इसको ज़रूरत पड़ी तो. आई, वो बोलते मैं, बिकॉज वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, हैना ने डॉक्टरी की है बट शी हैव नेवर प्रैक्टिस्ड इट, शी हैव नॉट इवन सीन द ऑपरेशन. तो यहाँ पे ये हमें ध्यान में रखना है. शी रिपीटेडली ब्लैंक बट नेवर हैव आई. बोलता मैंने तो कभी किया नहीं. इट इज़ ईजी. बोला बहुत ईजी है. सेड इम्पेशेंटली. ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ. फिर उसने वो जो मॉस की पैकिंग लगाई थी वो निकाली. एंड द ब्लड बिगैन टू फ्लो मोर क्विकली. और फिर ब्लड वापस बहने लगा. ही पियर्ड इन टू द वुंड विद अ ब्राइट सर्जन्स लाइट. और ये जो लाइट दिख रही है आपको यहाँ पे, उससे उसने अंदर देखा. एंड द बुलेट इज स्टिल देयर. वो कहता है बुलेट अभी भी वहीं है. ही सैड विथ अ कूल इंटरेस्ट, नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वुंड इज. इफ इट इज नॉट टू डीप, बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, बट द ब्लीडिंग इज नॉट सुपरफिशियल. वो कहता है पता नहीं ये कितना डीप है, अगर ज़्यादा डीप नहीं है तो मैं ज़रूर बुलेट तो निकाल लूँगा. बट द ब्लड लॉस इज़ टू मच. बहुत सारा ब्लड बह गया है. एट दिस मोमेंट हैना चॉक्ड. सी हियर यू कैन सी. जैसे इसने ये इसका थोड़ी उल्टी जैसा हुआ. एट दिस मोमेंट हैना चॉक्ड. ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस कलर ऑफ सपर. डोंट फेंट, he said sharply. He did not put down his exploring instrument. वह हैना की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. वो अपना जो एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो लाइट है और जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो देख रहा है बुलेट कहाँ है. वो बस यही कहा कि डोंट फेंट. इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई. बोला मैं अगर रुक गया अभी तो ये आदमी ज़रूर मर जाएगा, तो मैं रुक नहीं सकता. शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ एंड लिफ्ट आउट एंड रैन आउट ऑफ द रूम. फिर वो एकदम से जैसे उल्टी जैसा होने लगा तो हाथ को ऐसे बंद करके वो बाहर चली गई उल्टी करने के लिए. आउटसाइड द गार्डन ही हर्ड हर रेचिंग.
उल्टियों की जो आवाज़ होती वो उसने सुनी, बाहर ही वो कर रही थी. बट ही वेंट ऑन विथ हिज वर्क. मगर डॉक्टर सलाव डिडंट स्टॉप. ही कंटिन्यूड हिज वर्किंग. It will be better for her to empty her stomach, he thought. He had forgotten that, of course, she had never seen an operation, but her distress and her inability to go to her at once made him impatient. अब वो ये भूल चुके थे कि हैना ने तो कभी ऑपरेशन देखा ही नहीं है. अब मगर वो भी थोड़े से ऐसा लग रहा था उनको कि मैं अपनी वाइफ को हु इज़ हैविंग ए प्रॉब्लम, मैं उसकी हेल्प क्यों नहीं कर पा रहा हूँ. ओके, बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी टू गो इरिटेबल, थोड़ा सा इम्पेशेंट हुए, थोड़ा सा इरिटेबल हुए विद दिस मैन हु ले, ये जो नीचे बंदा है इसकी वजह से. एंड दिस मैन ही थॉट देयर इज नो रीज़न अंडर हेवन वाई ही शुड लीव. मतलब ये क्यों जिंदा रहना चाहिए, कोई है नहीं, क्योंकि फ्यूचर में भी शायद होगा कि ये मर जाएगा. अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस. और जैसे ही ये थॉट उसके दिमाग में आए वो थोड़ा सा रूथलेस हो गया. लाइक ही स्टार्टेड प्रोबिंग द वुंड. रूथलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली. इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड बट सडाउ पेड नो हीड एक्सेप्ट द मटर टू हिम. और जब वो उसके जख्म को देख रहे थे तो वो आदमी थोड़ा सा करहा रहा था, बट ही डिडंट पे अटेंशन. ही जस्ट टोल्ड, ग्रॉन, ही मटर्ड, ग्रॉन इफ यू लाइक, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर योर प्लेजर. इन फैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग. बोला मैं जानता तक नहीं हूँ कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ तुम्हारे लिए. वाई आई एम ट्राइंग टू सेव यू. The door opened and there was Hannah again. फिर हैना वहाँ पे आ गई. Where is the anesthetic? फिर वो आके पूछती कि anesthetic कहाँ पे है. She asked in a clear voice. Sadao mentioned with a chain. और फिर ऐसे इशारा किया कि वो वहाँ पे. It is as well that you came back. बोला कि ये अच्छा हो गया तुम आ गए, because this fellow was mourning, beginning to stir. थोड़ा हिल भी रहा था. She had bought the bottle and some cotton in her hand. फिर वो बोतल ली, कॉटन लिया. And but how shall I do? बोला कैसे देना है. Simply saturate the cotton and hold it near his nostrils. Sadao replied without delaying for one moment the intricate detail of his work. When he breathes badly, move it away. बोला कुछ नहीं करना, ये बॉटल लो, कॉटन एंड सेचुरेट द कॉटन, यानी पूरे कॉटन को गिल्ला कर लो और उसके नाक के पास में लाना. और जब वो थोड़ा ब्रीथ करे, थोड़ा ब्रीथ में प्रॉब्लम हो तो वो हटा लेना, वरना उसके पास जैसे वो सूंघेगा तो वो बेहोश रहेगा. ओके. व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली, मूव इट अवे a little. She crouched close to the sleeping face of the man American. It was piteously thin face. बहुत ही पतला सा दुबला सा फेस था, because he was a young boy, and she thought, and the lips were twisted. The man was suffering whether he knew it or not. वो ये पहचान गई कि ये इसको दर्द हो रहा है बहुत. Watching him, she wondered if the stories they heard sometimes of the suffering of the prisoners were true. They came like flickers of the rumors told by the word of mouth and always contradicted. अब उसको देख के उसको कई चीज़ें का रिकॉग्नाइजेशन हुआ कि कई बार जैसा होता है कि बाई कंट्रीज़ होती जब किसी और कंट्री पे इन्वेड करती है और जो न्यूज़ आती है दैट इज़ Japan have conquered so and so country and the people from those countries are welcoming Japanese army कि that you have come and liberated us. तो ये stories जो है these are all contradicting because यहाँ पे ये अमेरिकन है जिसको तुम इतनी गोली भी मार रहे हो. In the newspaper the reports were always that wherever the Japanese army people went, the people received them badly. ग्लैडली. और न्यूज़पेपर में तो यही आता था कि जहाँ पे भी जापानीज़ आर्मी जाती है वहाँ पे
वेलकम किया जा रहा है एंड विद द क्राइज ऑफ जॉय एंड लिबरेशन. बट समटाइम्स शी रिमेंबर सच मैन एज जनरल टकीमा. अब उसको ये भी याद है कि ये जो जनरल टकीमा है, ये पर्सन हु एट होम बीट्स हिज वाइफ क्रूअली, वो बहुत ही बुरी तरह से अपनी वाइफ को मारते हैं. तो सोचो, क्रूअली दो नॉट मेंशन, here it is. But sometimes she remembered the man, such man as General Takima, who at home beats his wife cruelly. वो अपनी वाइफ को ऐसा मारते हैं. No one mentioned, ये कोई बताता नहीं, but there are rumors and there that he fought so victorious. अभी आज की डेट में तो उसको कोई कुछ नहीं बोलता, because this General Takima have won many battles also, like battles of Manuchria. If a man like that could be so cruel to a woman in his power, अगर वो आदमी जो जनरल टकीमा अपनी ही वाइफ को इतना मारता है, तो सोचो, would he not be cruel to one like this? तो वो क्या इतना निर्दयी नहीं होगा इस पर्टिकुलर पर्सन who is his enemy?